everyone. I am Dr. Nupur Gupta. I practice gynecology in Gurgaon, and today we have with us Dr. Manjari. She is a childbirth specialist, a childbirth educator, and a breastfeeding specialist based in Pune. And she will discuss with us that how you can have a positive birth experience, how you can have a fearless birth. And I'm sure many of you have fears about having your fear of pregnancy, your fear of childbirth, which we commonly call as tocophobia. And if such questions scare your mind about childbirth, if you are fearing the countdown to your due date, or if they leave you stressed out and anxious, such kind of fears, then we are here to help you in your new birth preparation approach from conception to childbirth with retaining your peace of mind. So clear your fears and have a positive birth experience, which is the essential roadmap to confront and conquer, and also to stand upright and to remove these fears which are there between you and your motherhood. So let us learn how to mentally, emotionally prepare for birth of your bundle of joy. And by ridding your fears, you will turn your potential trauma into an empowering experience. So according to Ina May Gaskin, she was a spiritual midwife from America. She said that labor is painful. Labor and birth can be ecstatic. It can even be orgasmic. But if you understand the pain, it will help you to eliminate the fear. And to have a fearless birth, you need to work on yourself. You need to work from the beginning, the time that you conceive, and try to understand that what kind of fears are going on in your mind. So, if we try to understand that what are the fears that plague your mind, as a mother, as a father, your fears are different. Especially such kind of fears come in the last trimester regarding so many factors. So, Dr. Manjari, if we discuss about fears of both mother and father, can you describe or elaborate them in detail that what are the fears to mother during childhood? अगर हम फादर मदर्स की फेयर देखें तो दोनों के लिए अलग अलग फेयर फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हम मदर के फेयर्स को डिस्कस कर ले तो मदर के लिए ये फेयर होती है कि उसका लेबर पेन कैसे स्टार्ट होगा, उसकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगा, पेन्स के साथ उसको कैसे मैनेज हो पाएगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो जाती है तो उसको कैसे हैंडल करना है और हॉस्पिटल कब जाना है। ये डिफरेंट फेयर्स जो है वो मदर के लिए आती हैं। और फादर के लिए ये होता है कि मदर की लेबर कब स्टार्ट होगी, बीइंग अ सपोर्ट पर्सन वो कैसे हेल्प कर सकते हैं मदर को। अगर उसकी पेन स्टार्ट हो जाती है तो मैं पेन में मदर को देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, हॉस्पिटल में उसको कब ले जाऊंगा, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो मेरा क्या रोल रहेगा, मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता हूँ। सो ये फादर की फेयर होती है। सो दोनों के लिए अलग अलग फेयर होती है। स्पेशली जब आप लास्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो ये ज्यादा आने लगती है फेयर्स, क्योंकि आपका जैसे ही डे नजदीक आने लगता है तो आप बहुत हार्मोन्स की वजह से भी आप स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। और अगर किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी की कोई अगर स्टोरी सुनते हैं, वो बताते हैं आपको उससे रिलेटेड उनकी एक्सपीरियंस वगैरह, अगर वो स्केरी तो और ज्यादा आप स्केरी हो जाते हैं। तो ये निगेटिव इम्पैक्ट भी कई बार ज्यादा काम करता है आपको फेयर को बढ़ाने में। तो आपने वेरी राइटली पुट किया कि एवरी बर्थ स्टोरी इज डिफरेंट एंड वी शुड नॉट लिंगर अराउंड by hearing the negative birth stories. It is very important to also know about positive birth stories which very few people narrate to you. And it is also important to have the right scientific information to remove your fear. So Dr. Manjari, वो क्या तरीके हैं हैंडल करने के लिए to remove such fear factors? सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आपको अपनी फेयर के ऊपर काम करना है, उनको एलिमिनेट करने के लिए या उनको हैंडल करने के अगर आपको मैनेजमेंट टेक्निक्स देखने हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लासेस ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। तो वो जो क्लासेस है वो आपको इन फेयर्स के साथ मैनेज करने के डिफरेंट टेक्निक्स बता देंगे। प्लस आपका लेबर कैसे प्रोग्रेस होगा, लेबर पेन्स क्यों आती है, आप किस तरह से उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं खुद को, प्लस आपके पार्टनर या हस्बैंड आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी जो एक राइट ट्रैक की इंफॉर्मेशन आपको उन क्लासेस पे मिल जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो लेबर पेन्स के साथ मैनेज करने का सबसे असरदार जो तरीका है वो है ब्रीदिंग।
आपका ब्रीदिंग बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। अगर जिन्होंने क्लासेस अटेंड किए हुए हैं और जो जिनकी डिलीवरीज हुई है, तो आपको ये ज़रूर उनकी पॉजिटिव स्टोरीज बता देंगे कि ब्रीदिंग कितना हेल्पफुल रहा उनको लेबर पेन्स के साथ मैनेज करने के लिए। क्योंकि अगर हम लेबर्स या पेन से रिलेटेड डिस्कस कर लें, तो जैसे ही आपका पेन शुरू हो जाता है, आपने पहले ही बहुत सारी स्टोरी सुनी होती कि पेन तो बहुत पेनफुल होता है यार, बहुत मुश्किलें थी, बहुत डिफिकल्ट था। तो ये पहले ही फिर आपके दिमाग में पहला यही होता है कि यार पेन बहुत पेनफुल होता है, और पेन की वजह से आपको फियर आता है, फियर की वजह से आपकी बॉडी में टेंशन क्रिएट हो जाती है, और इस टेंशन की वजह से आपकी पूरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। कि टेंशन की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस की वजह से आपका यूट्राइन मसल जो है उनका ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई कम होने लगता है। बट अगर आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स पता है, मेडिटेशन रिलैक्सेशन पता है, तो आप क्या करते हैं, आप होल बॉडी रिलैक्सेशन के लिए खुद को हेल्प करते हैं, और जैसे ही ये स्टार्ट हो जाता है आपका मसल रिलैक्स होने लगता है, और आपका जो मसल का ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई वो रिस्टोर होने लगता है, और आपकी पेन जो है वो इतनी पेनफुल नहीं होती, वो आपको मैनेजेबल लगती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको क्लासेस में पता चल जाएगी, और इनके टेक्निक्स आपको पता चल गए तो डेफिनेटली आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगा कि लेबर पेन्स को कैसे मैनेज करना है और कैसे आपको फियरलेस होना है पेन्स के साथ मैनेज करने के लिए। So it is very important that you empower yourself with the right knowledge, with the right scientific information. और जो भी नेगेटिव परसेप्शन है ऑफ अबाउट द लेबर पेन दैट हैज टू गो, बिकॉज नहीं तो जो डॉक्टर मंजरी ने कहा, जो पेन फियर टेंशन साइकिल है, उसकी वजह से आपके जो सारी मसल्स हैं, जो पेल्विक फ्लोर की मसल्स हैं, दे ऑल गो इनटू स्पैज़म। तो ना बेबी का डिसेंट होगा, बेबी को डिस्ट्रेस होगा बिकॉज यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ वेल बिकॉज ऑफ योर एंजाइटी, और बेबी का प्रोग्रेस या लेबर का प्रोग्रेस भी होना कम हो जाएगा। तो इसके लिए बर्थ एजुकेशन क्लासेस आर अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, या फिर आपके अपने जो डॉक्टर हैं, गायनी डॉक्टर, दे कैन ऑल्सो रिकमेंड यू और कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन हु कैन हेल्प यू ड्यूरिंग सच टाइम्स। कभी कभी कुछ कंट्रीज में डूला सपोर्ट भी मिलता है एट द टाइम ऑफ लेबर, एंड लेबर पेन्स कैन ऑल्सो बी मैनेज्ड। You must have also heard about painless labor. तो painless का मतलब 100% pain free नहीं होता, but to a large extent your pain can be managed. And Dr. Manjari will tell us कि pain management के लिए किस तरह की techniques अपनाई जा सकती। अब पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो आप 2 टाइप के टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एक है विदाउट मेडिकेशन, जिसमें आपका ब्रीदिंग आएगा, आपके हस्बैंड का सपोर्ट आएगा, मसाज आएगा, योगा बॉल है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं पेन्स के साथ मैनेज करने के लिए। और अगर एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है तो आप मेडिकेशंस भी ले सकते हैं पेन्स के साथ मैनेज करने के लिए। तो डिफरेंट मेडिकेशंस होगी, पेनलेस डिलीवरी जिसको हम एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो भी आप लेते हैं। बट बीइंग अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, हम रिकमेंड करते हैं कि जितना आपका बर्थ लेस मेडिकेटेड होगा, उतनी ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो डिफरेंट टेक्निक्स आप अगर समझ लेते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, ये पहले से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तो डेफिनेटली आप पेन्स के साथ मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि ऑल्दो देयर इज अ पेन इन चाइल्ड बर्थ, इट इज़ अ पेन विद पर्पस। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका पेन है फिर भी वो एक पर्पस के साथ आ रहा है, और नेचर ने ऐसा बनाया कि शुरू की आपकी लेबर पेन्स बहुत माइल्ड होगी, और 2 लेबर पेन्स के बीच का टाइम गैप भी ज़्यादा होता है, तो आपको रेस्टिंग फेज भी मिलता है। और जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, धीरे धीरे आपकी बॉडी अगर उनके साथ मैनेज करने लगती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और माइल्ड टू मॉडरेट या स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में आप खुद को प्रिपेयर करते हैं कैसे मैनेज करना है। तो ये आप ज़रूर समझा लीजिएगा अपने क्लासेस में, जो आपके लिए फिर बेनिफिशियल रहेगी। आपका जब एक्चुअली लेबर पेन्स दूर हो जाएगी और आपका डे आ जाएगा, तो वो डेफिनेटली आपके लिए ये टेक्निक्स हेल्पफुल हो जाएगी। तो डॉक्टर मंजरी ने एकदम सही बताया कि यदि हमारी ब्रीदिंग टेक्निक ठीक है, वी नो व्हाट टू डू, वी नो हाउ मच वाटर टू बी टेकन, वी नो कि मोबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है एट द टाइम ऑफ लेबर, या सपोर्ट पार्टनर क्या रोल है, और सपोर्ट पार्टनर कितना एजुकेटेड है एट द टाइम ऑफ लेबर फॉर योर सपोर्ट, या फिर आपकी वो प्लान्ड डिलीवरी है या प्लान्ड वेजाइनल डिलीवरी है, वेदर यू हैव हैड अ बर्थ प्लान विद योर गायनेकोलॉजिस्ट, या फिर बर्थ प्लान आपने पहले से डिसाइड किया है, तो बहुत सी एंजाइटी वैसे ही कम हो जाती है। So it is very important for you to create a positive mindset for your birth.
and approach your pregnancy with mindfulness, जिसे हम mindful reflection भी कहते हैं. So acknowledgement is very important to overcome your fear, to work through your fear, and follow those action steps that are just being mentioned. Be patient, be stress-free. Attend childbirth classes if you want to understand labor. Don't Google. Only take information which is relevant for you. There are different pain management techniques that are available. And as Dr. Manjari pointed out, this is pain with a purpose. Create a positive mindset and surround yourself with positivity. Only watch what is being told to you and look after yourself. Thank you.